नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल जोशी एएमबी न्यूज़ में आप सभी का फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, एएमबी न्यूज़ फोटो वीडियोग्राफी इंडस्ट्रीज का सबसे पहला न्यूज़ चैनल है और इसमें बहुत सारे न्यूज़ अपडेट जो फोटो वीडियो रिलेटेड रहते हैं वही आपको दिखाए जाते हैं और मोर देन 400 वीडियोस यहाँ पर अपलोड है, जैसे कि वर्कशॉप, कंपटीशन, एग्जीबिशंस, नए प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन, नए सर्विसेज की इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू फोटो वीडियो इंडस्ट्री सभी आपको एक जगह पे मिलेगी। तो आप इसका मैक्सिमम यूज कीजिए, ये आपके लिए ही बनाया गया है, स्पेशली नए प्रोडक्ट और नई सर्विस और आपके जो फोटो कॉन्टेस्ट है, फोटो टूर है, वो सभी के लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आप आपके इंफॉर्मेशन मुझे मेरे नंबर के ऊपर आप भेज सकते हैं 9223392434 पर और info@amnews ईमेल आईडी भी है, उसके ऊपर भी आप ये आपकी इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। एएमबी न्यूज़ में हम सबसे पहले आज की हेडलाइंस बताएंगे। चित्रांजलि लेकर आए हैं ऑल इंडिया फोटोग्राफी कॉम्पिटिशन। वर्ल्ड लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा 3200 मेगापिक्सल्स फोटो। सीनियर फोटोग्राफी एसोसिएशन और साई कैमरा स्टोर्स देवरा आयोजित लाइव डेमो और वर्कशॉप की कुछ स्नैपशॉट। प्रोडक्ट अनाउंसमेंट सोनी अल्फा 7R5। आईसीसीआर कोलकाता लेकर आए हैं इंडिया फोटो फेस्ट फॉर बिगिनर्स। लर्न एडवांस लेवल प्री वेडिंग फोटो वीडियो एडिटिंग एंड पोस्ट प्रोसेसिंग बाय कुणाल सोनी जी। आइए एएमबी न्यूज में हम डिटेल से बात करेंगे आज के न्यूज के ऊपर। चित्रांजलि लेकर आए हैं ऑल इंडिया फोटो वीडियोग्राफी कॉम्पिटिशन, जिसमें एंट्री सबके लिए फ्री है और जिसका फर्स्ट प्राइज 1 लाख रुपीज से भी ज्यादा है और इसकी डेट्स है 20 नवंबर, 5 नवंबर से 20 नवंबर। कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए आप अपने क्लिक हुए फोटोग्राफ्स अपलोड कर सकते हैं www.chitranjali.net पर। अधिक जानकारी के लिए आप उन्हें मेल भी कर सकते हैं। आपको पता है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डिजिटल कैमरा कितना मेगापिक्सल्स का है? 3200 मेगापिक्सल्स का कैमरा है। स्लैक नेशनल एक्सेलेरेटर लेबोरेटरी के साइंटिस्ट ने यहाँ पर अनाउंस किया है कि सबसे लार्जेस्ट 3200 मेगापिक्सल्स का कैमरा है। आप एक जानकारी आप यहाँ से ले सकते हैं। कैमरा वीरा सी रूबिन्स ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से दूरबीन का सेंटर पीस होगा। आइए इनका एक वीडियो हम आपको दिखाते हैं। You've heard of Hubble and more recently James Webb. Now get ready for the next incredible telescope expected to discover billions of new stars, uncover millions of new objects in our own solar system, and fundamentally change the way we see the universe. This camera, the size of a small car, is the centerpiece of the Legacy Survey of Space and Time, or LSST, a 10-year project to map the entire southern sky in incredible detail. Just how much detail? This 3200 megapixel camera is so powerful, it can spot a golf ball 15 miles away. When the decade-long project is finished, scientists will have produced a 3D movie of the sky. One that shows how all the trillions of objects captured move relative to one another, how light bends around massive objects, and how individual solar systems and galaxies developed over billions of years. Once finished, the LSST camera will be the heart of the Vera C. Rubin Observatory in the mountains of northern Chile. Here, at the SLAC National Accelerator Laboratory near Stanford University, scientists are putting the finishing touches on the camera. This has been a long process, more than 2 decades. Just like the camera on your phone, on the LSST camera, it all starts with the lens. But this camera being 13 feet long, the lens is a whopping 5 feet across. That's a Guinness World Record, by the way, and it took 5 years to construct. After passing through the lens, the light hits one or more of 6 filters, each optimized to collect light from a specific range in the spectrum, from ultraviolet to near infrared.
Once the light is filtered, it hits the focal plane, which captures the image. The focal plane is made up of 189 individual sensors, blocked together in groups of 9 to form what's called a raft. This time-lapse video shows the camera team assembling the 25 rafts that make up the focal plane over a period of 6 months. At $3 million per raft, and gaps between them less than 5 human hairs wide, it was a delicate process, but it worked. Scientists tested the focal plane last year and produced these images. This, by the way, is a head of Romanesco broccoli. That's because the camera generates a lot of heat, about 10 times more, in fact, than early astronomical cameras. And the focal plane needs to stay around minus 100 degrees Celsius to operate at peak performance. Once in operation, the telescope will capture a piece of the sky 3.5 degrees across. That's 7 times the width of a full moon. Using this massive shutter, the camera will take back-to-back 15-second exposures, then read that data out for about 2 seconds before moving on to the next section of sky. That means all of us will be able to scour LSST's 10-year movie and make our own discoveries. But scientists like Risa Wexler that are particularly starry-eyed about what's coming. And it's not just the new planets, stars, and galaxies that has scientists excited. They expect LSST to give them new insight into scientific mysteries that have so far gone unsolved. So I want to know what you think. What excites you most about LSST? Let me know in those comments down below. If you enjoyed this video, please don't forget to give it a thumbs up and subscribe to CNET for more like it. हम आपको और एक वर्कशॉप की जानकारी देना चाहेंगे एएमबी न्यूज के जरिए। हाल ही में सीनियर फोटोग्राफर्स एसोसिएशन और साई कैमरा स्टोर्स देवरा इन्होंने लाइव डेमो और एक वर्कशॉप आयोजित किया गया। उसके कुछ हम लोग फोटोग्राफ्स यहाँ से देखेंगे। ऐसे ही आपके प्रोग्राम के इंफॉर्मेशन भी आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं। प्रोडक्ट अनाउंसमेंट में सोनी अल्फा 7R5 हमारे प्रोडक्ट सेगमेंट्स में हम आपको बताएंगे। पिछले महीने में सोनी लॉन्च किए हुए अल्फा 7R5, आइए देखते हैं उसकी झलकी क्या क्या खास है इसमें सोनी 7R5 में। अगर इसके डिस्क्रिप्शन में बात करने में चाहेंगे तो बहुत टाइम जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको इसके फुल फ्रेम मिररलेस इंटरचेंजेबल लेंसेज कैमरा इसके बारे में हम आपको बताएंगे, और ये एक वीडियो और फोटोज भी हम आपको इसमें दिखाएंगे कि इसमें ये लेंस कैमरा जो है उसमें न्यू लेवल ऑफ कैमरा इंटेलिजेंस फ्रॉम न्यू AL प्रोसेसिंग यूनिट्स भी है। इट्स इक्विप्ड ए नेक्स्ट जनरेशन AF विथ रियल टाइम रिकॉग्निशन ऑटो फोकस डीप लर्निंग। इसके अलावा अगर बॉडी की बात करेंगे तो 4 एक्सिस LCD मॉनिटर्स है, 5 एक्सिस इन बॉडी स्टेबलाइजेशन है, फिल्म मेकिंग विथ 8K 24p 4K 60p, सिलेक्टेबल रो इमेजेस साइज भी है, फास्टर मोर प्रोसेस AF में है, फास्टर्स भी है, मोर प्रिसाइज भी है AF में, अप टू 583 रो इमेजेस एट 10 fps, ड्यूअल CX एक्सप्रेस टाइप्स स्लॉट, न्यू एंटी रस्ट सिस्टम्स भी है। अधिक जानकारी के लिए सोनी के ऑफिशियल चैनल्स पर ये कैमरे का फर्स्ट लुक का वीडियो भी हम आपको दिखाते हैं। Alpha 7R Mark V. Evolved Imaging Intelligence. Bringing you the highest standard of imaging and a whole new level of artistic freedom. The 61 megapixel Exmor-R sensor achieves the highest resolution in the history of the Alpha series and combines with the latest Beyond's XR image processing engine to capture subject detail with stunning definition. It is now possible to recognize once challenging scenes, such as where the subject is small or facing backward. Recognition accuracy for animals has been improved by 40%,
compared to the Alpha 7 Mark IV. It can accurately capture difficult scenes where animals are facing backwards. 693 densely distributed phase detection focus points that cover almost the entire image area. EV-4 low light performance, full-time direct manual focus function, and more. Together with highly accurate AI-based subject recognition technologies, the Alpha 7R Mark V incorporates all the latest Sony technologies alongside a significantly advanced autofocus system. Sony continues to strive for even higher image quality and increased shooting freedom. In order to fully exploit the high-resolution performance, advances have also been made over the total image stabilization system. The stabilization effect of 8.0 steps for still images is the highest achieved in the history of Alpha series camera bodies. Additionally, the high-resolution performance of the 61.0 megapixel image sensor is fully exploited to correct fine blur at the single pixel level. And it's not only still images. Movies are also of higher quality than ever before, with, for example, 8K 24p full pixel readout. The sharp, eye-opening resolution of the Alpha 7R Mark V ensures stunning results. The full frame and 61 megapixel resolution can also be captured raw and without image degradation using new lossless compression modes, alongside 26 and 15 megapixel settings for improved file handling and workflow efficiency. Plus, with the high full-frame resolution, a quick switch to APS-C shooting allows for a useful image crop while still delivering impressive 26 megapixel images. In addition to 8K shooting, 4K video is oversampling from 6.2K pixels without binning to deliver maximum detail and offers up to 60p shooting and S-Cinetone for superior cinematic expression. Subjects are smoothly and tenaciously tracked with highly accurate subject capture and high AF performance across a wide area using AI technology. A wide variety of cutting-edge movie shooting functions from the Alpha 1, Alpha 7S Mark III, and Alpha 7 Mark IV are also provided. The high levels of operability demanded in feedback from many professionals have been achieved while realizing a compact and lightweight design. The Alpha 7R Mark V is equipped with a unique new 4-axis multi-angle LCD monitor. While maintaining a high degree of robustness, the angle of the monitor can be adjusted for easy viewing in any shooting position, including vertical, landscape, and selfie movie shooting. The high-performance electronic viewfinder has a wide field of view and the highest resolution in its class. 2 media slots are both compatible with CF Express Type A and SD memory cards. A full range of communication functions support professional workflows. PC remote shooting via Wi-Fi or USB connection supports shooting in the studio or outdoors. And of course, the Alpha 7R Mark V can be used for shooting in severe professional situations with confidence. With its magnesium alloy exterior and its dust and moisture-resistant design that enables shooting in harsh environments, along with Sony's proprietary heat-dissipating construction that enables over 30 minutes of shooting, even at 8K. The Alpha 7R Mark V provides creative artists with the highest quality and freedom of shooting. A wide range of E-mount lenses, including G-Master, covers every shooting opportunity. The Alpha 7R Mark V responds to your limitless sensibility and creativity with evolved imaging intelligence. Alpha 7R Mark V. आइए देखते हैं एएमबी न्यूज में आईसीसीआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस कोलकाता लेकर आए हैं इंडिया फोटो फेस्ट
जो कि बिगिनर के लिए एक सुनहरा अवसर है। इसके बारे में एग्जीबिशन में अधिक जानकारी के लिए www.cog इंडिया आर्ट में भी आप जा सकते हैं और वहां से इंफॉर्मेशन शेयर कर आप ले सकते हैं। एएमबी न्यूज में हम आपको दिखाएंगे कुशल सोनी। यस, कुशल सोनी जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं, दिसंबर 22 में उन्होंने एक अच्छा सा एडवांस लेवल पे प्री वेडिंग, फोटो वीडियो एडिटिंग और पोस्ट प्रोसेसिंग के अधिक जानकारी आप उनको कॉल कर सकते हैं और वहां से अधिक जानकारी ले सकते हैं। तो आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब किया है? नहीं किया तो आप जरूर से कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए। तो मंगलवार टू मंगलवार के बीच में बहुत सारे एपिसोड रिलीज होते हैं। मोर देन 400 वीडियोस अवेलेबल हैं यहाँ पर, तो आपको उसकी नोटिफिकेशन भी मिलती रहेगी। एल्बम्स, फोटो प्रिंट्स कितना इम्पोर्टेंट है, वो इंफॉर्मेशन हम आपके लिए लेके आए हैं। प्रिंट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ एनी गुड फोटोग्राफ्स। कोई भी आपकी हॉबी हो या आपके प्रोफेशन हो, उसके लिए प्रिंट मीडिया बहुत इम्पोर्टेंट है। डिजिटल है हम एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन साथ में प्रिंट भी उतना ही। फोटो जैसा बोलता है ना कि फोटो स्टोरी टेलर्स है, प्रिंट का क्या इम्पोर्टेंट है उसके लिए हम बात करेंगे विमल परमार जी। विमल परमार जी उनके सोशल मीडिया में उनके जितने भी टॉक शो है उसमें वो बात करते हैं प्रिंट का क्या इम्पोर्टेंट है, प्रिंट क्यों करना चाहिए। विमल परमार जी मार्केटिंग कंसल्टेंट हैं टेक्नोवा इमेजिंग सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड से। तो आइए उनके व्यूज और उनका एक्सपीरियंस शेयर करते हैं प्रिंट के बारे में। आइए मिलते हैं विमल परमार जी से। Hi, my name is Vimal Parmar and I'm a marketing consultant. Like most of you all, I'm also passionate about photography. But since I come from a print background, the passion is more towards print. Yes, printing of photographs. So most of us friends, when we meet, the question that usually comes up is why print? Why print photographs, especially in this digital world? Well, I personally believe that the final destination of every good photograph should be print. A photograph is complete only after it is printed. Digital files are susceptible to damage and may get lost over years since storage technologies change drastically over time. Digital storage devices can get lost or crash. Print is easy, trust me. It can either be outsourced or you can print your images at home. Images on a computer or a mobile screen or tab can never match the richness of a high quality professional print. Trust me, try it out. And the fact is, a good print separates a professional photographer from an amateur, as print files require a higher skill set. Print actually makes you a better photographer because print is unforgiving. Flaws get amplified, and that's how you learn. Print provides a huge selection of media types and, of course, sizes, uh, various print technologies. A printed photograph on an archival substrate lasts more than 100 years. Uh, a printed photograph makes, apart from good photo books, it also makes excellent wall decor. There are several reasons, but last not the least, print supports the entire photography industry apart from highly benefiting the end customer. Reasons are plenty. Maybe we could discuss how far can you take your photographs via the medium of print. Maybe whenever we meet next. Thank you. कि प्रिंट इज द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ एनी गुड फोटोग्राफ्स। बरोबर है विना जी? हाँ जी, हाँ जी। यस तो यस जी यस। सही तो कहा आपने। विमल जी मार्केटिंग कंसल्टेंट है टेक्नो इमेजिंग सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड से। तो विमल जी, ये जो आज का टॉपिक है प्रिंट, जी प्रिंट क्यों जरूरी है और प्रिंट करना कितना इम्पोर्टेंट है, और प्रिंट हम लोग करेंगे तो उसका बेनिफिट्स क्या होगा।
सबसे पहले अतुल भाई, थैंक यू वेरी मच, ये मुझे ये मौका दिया आपने आपके प्लेटफॉर्म पे, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ मैं, काफी अच्छा है, न्यूज़ काफी आप लोग शेयर करते हैं, तो प्लीज ये जारी रखिएगा और विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। अतुल भाई, प्रिंट, मैं सबसे पहले ये क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मैं प्रिंट इसीलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं प्रिंट बैकग्राउंड से आ रहा हूं। मेरा बैकग्राउंड में प्रिंटिंग इंडस्ट्री से शुरुआत हुआ है मेरा बैकग्राउंड, उसके बाद फिर फोटोग्राफी और हर इमेजिंग रिलेटेड, भले वो ग्राफिक आर्ट्स हो या मेडिकल इमेजिंग हो या फोटोग्राफी हो, सबसे मतलब अलग अलग कंपनियों में जब मैं काम कर रहा था, तो उस टाइम पे हर जितने क्षेत्र हैं इमेजिंग के, सबसे मेरा कनेक्शन रहा है। तो ये मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मैं प्रिंट इंडस्ट्री से आ रहा हूं, इसलिए मैं प्रिंट प्रमोट नहीं कर रहा हूं। मैं प्रिंट इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि प्रिंट जो है वो एक एंड यूजर को वो बहुत बेनिफिशियल है। फोटोग्राफर बाद में आता है, प्रिंटर बाद में आता है, पूरा इंडस्ट्री जो है वो बाद में आती है। सबसे पहले जो एंड कंज्यूमर है, हम अभी जो बात करेंगे वो एक एज अ फोटोग्राफर हम बात करेंगे, बाकी कोई इंडस्ट्री के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो एक फोटोग्राफी इंडस्ट्री से अगर हम कहते हैं तो क्यों फायदेमंद है वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। ये मेरे विचार हैं, अगर आप उसमें अगर आप भी कहते हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है, तो दैट वुड बी, या फिर हम डिबेट कर सकते हैं इसके ऊपर। सबसे पहले ये है कि मैं लोगों को कहता हूं कि आपने सबसे पहले आपका डिजिटल फोटोग्राफ कब लिया, भले वो डीएसएलआर से हो या मोबाइल फोन से हो, सबसे पहला फोटोग्राफ आप मुझे, वो आपका जो पहला फोटोग्राफ हो, चाहे आप एक एमेटर हो या प्रोफेशनल हो, मुझे पहले के आपके 5 फोटोग्राफ्स मुझे आप दिखा पाएंगे? तो ज्यादातर लोग कहते हैं कि वो तो मिसप्लेस हो गया, मेरा मोबाइल गुम हो गया, डेटा क्रैश हो गया। तो अनेक कारण है, कुछ लोगों के पास है बट कुछ लोगों के पास वो इमेजेस नहीं है। तो सबसे पहले जो डिजिटल फाइल है वो इट इज प्रोन टू डैमेजेस, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कहीं गुम भी जाते हैं, राइट? कहीं अगर मोबाइल फोन में है, डेटा क्रैश हो, आई मीन एसएलआर में, डीएसएलआर में है, डेटा क्रैश हो गया, मोबाइल फोन में है, मोबाइल फोन गुम हो गया, वो वापस हमें किसी भी हालत पे वो हमें इमेज नहीं मिलेगा। तो प्रिंट हम करते हैं तो वो प्रिंट, जैसे हमारे पास आज भी 50 साल 60 साल पहले की भी जो पुराने एल्बम है वो अभी तक है, राइट? कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए उसको देखने के लिए। दूसरा है कि स्टोरेज टेक्नोलॉजीज जो है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, आपने भी देखा होगा, हमारे और फोटोग्राफर भाइयों ने भी देखा है कि जो स्टोरेज टेक्नोलॉजी है वो सालों साल बदलती आती है, राइट? सो इसीलिए हमको, ये प्राइमरी रीजन है, हमें इसी कारण है हमको प्रिंट करना चाहिए, ये प्राइमरी रीजन है। और भी कारण है, मैं आपको मतलब एक एक लिस्ट आउट करके मैं कर सकता हूं, अदरवाइज ये प्राइमरी कारण है। दूसरा है कि गुड फोटोग्राफ वो सेपरेट करता है एक अमेटर और एक प्रोफेशनल से। जो प्रोफेशनल फोटोग्राफर है उसका काम बेहतरीन होता है, इक्विपमेंट, अच्छे इक्विपमेंट खरीदता है, तो वो काम आपको कोई मोबाइल पे या लैपटॉप पे वो काम आपको उतना, जितना अच्छा काम है उतना अच्छा नहीं दिखता है। जब आप प्रिंट करते हैं तो दिखता है कि वो ये एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर का काम है। प्रिंट अनफॉरगिविंग है, वो प्रिंट कभी माफ नहीं करता है। अगर छोटी सी भी छोटी गलती है तो वो प्रिंट उसको उसको बड़े अच्छी तरह से फोटोग्राफर को दिखाता है कि भैया ये प्रिंट जो है आपने जो फोटोग्राफ लिया है वो सही नहीं है। तो अगर आपको एक अच्छा फोटोग्राफर अगर आपको बनना है तो प्रिंट से हमें काफी कुछ सीखने को भी मिलता है। तो बहुत सारे कारण हैं, अगर आप कहिए तो मैं एक एक करके उसको मैं श्योर डिटेल से। श्योर, पक्का। पहले तो मुझे, जब डिजिटल नहीं था, जी मोबाइल नहीं था, जी, वो टाइम के ऊपर का वर्ड था फोटोग्राफ। तो करेक्ट, मेरे दिमाग में तो प्रिंट ही आता था, सही बात है, कैमरा भी नहीं आता था वो टाइम के ऊपर। फोटोग्राफ करेक्ट, बोलेगा तो फोटोग्राफ, जी हार्ड प्रिंट बोलेगा तो फोटोग्राफ। जी, ये तो एक फंक्शंस फोटोग्राफी के हुए।
लेकिन आज अगर जो दूसरे इंडस्ट्रीज के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि क्यों फोटोग्राफ्स वो लाइन में भी इम्पोर्टेंट है, प्रिंट उसके लिए भी इम्पोर्टेंट तो पहले तो मैं फोटोग्राफर पॉइंट ऑफ व्यू में कहना चाहूंगा कि मैं पर्सनली बिलीव करता हूं कि अगर कोई अच्छा पिक्चर है, अच्छा पिक्चर का फाइनल डेस्टिनेशन है, वो प्रिंट होना चाहिए, पहली बात। और ऐसा है कि डिजिटल के अगेंस्ट नहीं हूं मैं, डिजिटल और प्रिंट दोनों साथ चलना चाहिए। कुछ इमेजेस हैं आपको सोशल मीडिया में आप शेयर करते हैं, ईमेल करते हैं, उसके लिए आपको डिजिटल चाहिए, तो डिजिटल के खिलाफ नहीं हूं मैं, पर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि प्रिंट और डिजिटल दोनों साथ साथ चलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, लोग कहते हैं कि भाई मुझे प्रिंट नहीं चाहिए मुझे, करेक्ट, तो हम कहते हैं उनको कि भी प्रिंट आपके लिए नहीं है, प्रिंट जो है वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए। आप अगर आपका एल्बम अगर आप प्रिंट करते हैं तो 50 साल, 60 साल, 100 साल तक प्रिंट का लाइफ हम लोग कहते हैं, 100 साल से ज्यादा कहते हैं, करेक्ट, ये सब प्रूवन फैक्ट्स हैं। अगर आप उस तरह से प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, उस तरह से आप प्रिजर्व करते हैं फोटोग्राफ, उस तरह का सबस्ट्रेट आप लेते हैं, करेक्ट, 100 साल भी अगर हम मान के चलते हैं, तो ये सिर्फ हमारे जनरेशन के लिए नहीं है, ये हम प्रिंट करते हैं, एल्बम बनाते हैं, तो हम वो नेक्स्ट जनरेशन के लिए हम वो एल्बम बनाते हैं। और प्रिंट जो है वो बच्चों के लिए, ग्रैंड पेरेंट्स के लिए, सीनियर्स जो हैं फैमिली में, वो प्रिंट ज्यादा चाहते हैं, न कि मोबाइल में या लैपटॉप में इमेजेस देखे। प्रिंट ऐसी चीज है कि अभी हम फैमिली में इतने फोटोग्राफ्स लेते हैं, मैं तो यही कहता हूं कि आप हर साल सिर्फ आप 100 से 150 फोटोग्राफ आप सेलेक्ट कीजिए, सिर्फ 100 से 150 फोटोग्राफ। बाकी जो सेल्फी है, जो इमेजेस हैं जिसके साथ कोई आपका इमोशनल कनेक्ट नहीं है, उसको आप वो फोल्डर से निकाल दीजिए, राइट। एक अलग फोल्डर बनाइए, आपके फैमिली में जिन्होंने फोटोग्राफ लिया है सब इकट्ठा कीजिए, फिर उसमें से छांटते जाइए आप। फाइनल 100 या 150 फोटोग्राफ, 100-150 फोटोग्राफ आप रखिए, साल में सिर्फ एक एल्बम बनाइए, सिर्फ एक एल्बम, ज्यादा बड़ा भी नहीं, A4 साइज का भी एल्बम बनाइए जो आपके बुक शेल्फ में और किताबों के साथ वो रह सकता है। वो एक जो है वो एक फैमिली एल्बम होता है, वो फैमिली का वो एक एनुअल एल्बम रहता है। आपको कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए उसको देखने के लिए, कोई डेटा क्रैश का आपको चिंता नहीं है, वो 100 साल तक ऐसे ही पड़ा रहेगा। एक एल्बम, हर एक फैमिली हर साल एक एल्बम, आप उससे ज्यादा बनाइए ही मत। हाँ, शादी के फंक्शन है और कोई फंक्शन है उसकी बात अलग है, बट पर्सनल जो एल्बम हमारे, पर्सनल जो इमेजेस हमारे मोबाइल में है, एक एल्बम हर एक साल प्लीज जरूर बनाइए। इसमें सबसे ज्यादा फायदा है वो एंड यूजर का है, करेक्ट। डेटा क्रैश हो गया, गुम हो गया, गया, वापस नहीं आने वाला, कितने इमोशंस जुड़े हुए होते हैं, राइट, वो तस्वीरों के साथ, वो वापस नहीं आएगा। पर ये आपके जो जो इमोशनली जो आप कनेक्टेड हैं जो इमेजेस से, वो आप रखते हैं, तो सालों साल वो आपके पास रहता है। कैसे बनाएं? आसान तरीका, अगर आप एक एंड यूजर हैं, आप आपके जो कोई भी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर है, आप उनका हेल्प लीजिए, आप उनको कांटेक्ट कीजिए और उनको कहिए कि भाई मुझे एक फैमिली एल्बम बनाना है, A4 साइज का एक छोटा एल्बम बनाना है। और वो प्रोफेशनल फोटोग्राफर आपको, वो तो उनका तो काम ही है, करेक्ट, शादी के एल्बम्स तो प्रिंट करता ही है, तो उनके लिए तो आसान है। एंड कंज्यूमर के लिए शायद थोड़ा मुश्किल हो सके, भाई कैसे करें, एडिट कैसे करें, एल्बम कैसे बने, कहाँ जाए, कौन करेगा। एंड कंज्यूमर को मेरा कहना यह है कि आपके कोई भी, आपके बगल में कोई जान पहचान वाला है या कहीं से एडवाइस लेके एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर के पास जाइए और उनको कहिए कि मुझे एक छोटा एल्बम मुझे बनाना है, हर साल एक एल्बम। और प्रिंट जो है वो जैसे मैंने कहा कि एंड कंज्यूमर के लिए बहुत बेनिफिशियल है। एंड कंज्यूमर के अलावा वो एंटायर इमेजिंग पाइपलाइन को सपोर्ट करता है, राइट फ्रॉम अ फोटोग्राफर, राइट फ्रॉम अ प्रिंटर, राइट टू अ सर्विस प्रोवाइडर, राइट फ्रॉम एल्बम प्रिंट होता है तो कोरियर भी होता है, राइट, पूरा इंडस्ट्री को वो सपोर्ट करता है। पर सबसे पहले एक एंड कंज्यूमर को के लिए वो काफी बेनिफिशियल है। मैं बस मतलब उतना ही
प्रिंट इतना इंपॉर्टेंट है, इसलिए सर मैं किस कहना। किस टाइप का बुक बनता है आपके आइडिया से? सर एक तो मैंने अनगिनत टाइप, कुछ मैं कहूंगा कि वेडिंग एल्बम तो सबको मालूम है, करेक्ट, वेडिंग एल्बम बनता है। उसके बाद बेबी बुक भी बनता है, करेक्ट। बेबी बुक है कि भाई घर में बेटा या बेटी है, राइट, वो स्कूल, पहला स्कूल जब बच्चे जाते हैं, वो पूरा एक सेपरेट एल्बम, उसका पूरा एक बेबी एल्बम बन सकता है। लोग पेट पालते हैं, राइट, कोई कैट बिल्ली रखता है, कोई कुत्ते रखते हैं, कोई, राइट, अपने अपने हिसाब से। तो आप पेट एल्बम भी आप बना सकते हो, वो सिर्फ वो पेट को ही आप कवर करके कर सकते हो। फिर अलग फंक्शंस होते हैं, राइट, दिवाली के टाइम पे होता है, न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, कोई पार्टी होता है, गेट टुगेदर, तो फंक्शन स्पेसिफिक भी एल्बम बन सकता है। कॉर्पोरेट, अगर आपका कुछ बिजनेस है तो कॉर्पोरेट रिलेटेड आपके एल्बम बन सकते हैं। आपके ऑफिस में कोई फंक्शन हो, नया प्रोडक्ट लॉन्च किया हो, डीलर मीट हो, तो टॉपिक तो आपका कोई हॉबी हो, मान लीजिए आपका हॉबी स्टैम्प कलेक्शन है, करेक्ट। अब आप ओरिजिनल स्टैम्प कहाँ कहाँ आप लेके लोगों को दिखाने जाओगे? कोई प्रोफेशनल फोटोग्राफर का हेल्प लेके मैक्रो शूट कर सकेंगे, स्टैम्प अगर आप कलेक्ट करते हैं, कॉइन आप कलेक्ट कर सकते हैं, उसके फोटोग्राफ लेके आप एक हॉबी एल्बम आप बना सकते हो। आपको पेंटिंग का शौक है, पेंटिंग का साइज बड़ा होता है, कहाँ लेके आप घूमोगे वो पेंटिंग सबको? आपने एक छोटे एल्बम में उसको, राइट, फोटो लेके आपने कन्वर्ट करके आपने तो लिस्ट तो मतलब अनगिनत है। जो आप चाहो वो टॉपिक पे एल्बम बन सकता है। आप खाली पोइट्री लिख, आपकी खाली सोच चाहिए। सोच चाहिए। अगर आपको रेसिपी, खाना बनाने का शौक है, आप रेसिपी लिखते हैं, तो आप एक कुक बुक भी आप कर सकते हो। एक बुक आप प्रिंट करो, वो आपके लिए है। और ज्यादा बुक अगर आप करते हो तो आप आपके दोस्तों की वहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। अगर बुक इतनी ही अच्छी है तो आप बेच भी सकते हो कुक बुक, राइट। सो वो अनलिमिटेड ऑप्शंस हैं अतुल भाई, फैमिली बुक अनलिमिटेड भी ऑप्शन। बना सकते हैं आप। एब्सोल्युटली, बायोग्राफी बुक भी बन सकती है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, तो आपकी खुद की लाइब्रेरी आप बना सकते हैं। परफेक्ट, एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। तो सब्जेक्ट प्रिंट टॉपिक अनगिनत है। अनगिनत है। तो प्रिंट अगर रहेगा तो ही उसका बेनिफिट्स रहेगा, और इंस्टेंटली आप कनेक्टेड हो सकते हैं फोटोग्राफी के साथ। जी, 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 आपको जी, किसी को भी प्रेजेंटेशन देना है तो कोई चीज की जरूरत नहीं, आप खाली उनके सामने वो बुक रख दिया, आपका काम ही बोलेगा उसमें। आपकी एब्सोल्युटली, हॉबी, आपको जो उनको बताने का है वो आप प्रिंट के थ्रू बता सकते हैं। करेक्ट। और दूसरा है प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स, जब कोई मान लीजिए कोई वेडिंग फंक्शन है या कोई इवेंट है, अगर वो जॉब के लिए वो जाते हैं कि भाई उनको वो ऑर्डर चाहिए, तो अब देखिए, सोचिए मोबाइल में या लैपटॉप में अगर आप दिखाते हैं तो वो, और एक सोचिए, और एक तरह एक फोटोग्राफर है, वो प्रिंट खोल के दिखाता है कस्टमर को, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर को। अभी आप ही कहिए कि कौन सा अच्छा लगेगा? एंड जो बायर है, जो प्रोस्पेक्टिव कस्टमर है, ऑब्वियसली प्रिंट उन्हें अच्छा लगेगा, राइट। प्रिंट में आप, प्रिंट अगर जब दिखाते हैं तो आपको जो कम्युनिकेशन, जो टाइम मिलता है कस्टमर के साथ बात करने का, वो टाइम भी आपको ज्यादा मिलता है। अगर आप लैपटॉप मोबाइल में दिखाते हैं तो वो तो बस स्वाइप ही करता है कस्टमर, राइट। पर अगर आप प्रिंट दिखाते हैं तो भाई ये कौन सा पेपर है, और क्या साइज बन सकता है, प्रिंट में और क्या इफेक्ट आप डाल सकते हो। और प्रिंट सिर्फ इंक ऑन पेपर नहीं है आज। पहले टाइम पे था कि भाई एक टाइम था जब हम ज्यादा वैल्यू एडिशन नहीं कर सकते थे हम प्रिंट के ऊपर। आज डिजिटल आने के बाद इतना वैल्यू एडिशन हम उसमें कर सकते हैं। अलग अलग टाइप के इफेक्ट डाल सकते हैं, अलग अलग टाइप के हम सबस्ट्रेट यूज कर सकते हैं, पेपर भी और यूज कर सकते हैं, पेपर भी यूज कर सकते हैं, अलग टाइप के टेक्सचर, फिनिशिंग नॉन दे टेक्सचर, सकते हैं। नॉन टेयर का भी एक या सबस्ट्रेट आता है, करेक्ट, जो नॉन टेयर का भी सबस्ट्रेट आप यूज कर सकते हैं। तो अनगिनत ऑप्शन है। मुझे और याद है कुछ कोई बड़ी कॉरपोरेट कंपनी ने एक अच्छा सा फिल्म बनाया था। जी, बहुत अच्छा इमोशनल फिल्म था राइट, कि बहुत बारिश हो रही है रात को, न्यूली मैरिड कपल है,
नए घर में शिफ्ट हुए थे, लेकिन जी बारिश की वजह से बाढ़ में सब सामान चला गया। जी लेकिन जो नॉन टेरेबल और करेक्ट अच्छा सा पेपर यूज किया हुआ था, जी वो जी जी एल्बम तैरता हुआ ऊपर आया। जी तो जी वो मेमोरी उनकी वो एज इट इज रही, बाकी सब बह गए। तो यस प्रिंट का बेनिफिट्स वो इमोशनल भी बहुत अच्छा है। बहुत है जी बहुत है। और जैसे कि मैंने कहा कि मैं प्रिंट इसलिए नहीं करता हूं क्योंकि मैं प्रमोट करता हूं क्योंकि मैं प्रिंट बैकग्राउंड से आता हूं, मैं इसलिए करता हूं क्योंकि एंड कंज्यूमर को सबसे ज्यादा फायदा होता है प्रिंट, एंड या कंज्यूमर और को। कल ही मैं एक जगह पे मेरा क्लाइंट्स मीटिंग था, तो उसमें गया था। मैं एल्बम लेके गया था वहां प्रेजेंटेशन में। जी जी तो जो वाव फैक्टर एल्बम देखने के बाद उनको मिला, वो सब मेरे एब्सोल्युटली मोबाइल से या उसमें नहीं मिला मुझे रिवर्ट। करेक्ट 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 तो वाव फैक्टर आपको चाहिए तो प्रिंट जरूरी है, एल्बम्स जरूरी है। एब्सोल्युटली 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 तो रियली थैंक यू, आप प्रिंट के लिए हमारे साथ इधर फोटो वीडियोग्राफी का जो AMB न्यूज चैनल्स बनाया उसमें आप जुड़े, और आपके जो आइडिया और आपके व्यूज इसमें रखे, तो उसके लिए बहुत सारे जन इससे मोटिवेट होके प्रिंट मीडिया की तरफ जाएंगे और अपना काम, अपनी हॉबीज ये सब प्रिजर्व करना सीखेंगे। तो ये थे विमल परमार जी, जिन्होंने बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे साथ बात किस जरिए AMB न्यूज के जरिए इन्होंने आपके लिए शेयर की है। तो आपको अभी मालूम पड़ा प्रिंट का क्या इम्पोर्टेंट है, एल्बम का क्या इम्पोर्टेंट है। तो ये विमल परमार जी यहाँ पर आए, उसके लिए हम उनको धन्यवाद देना चाहेंगे। ऐसे ही इंफॉर्मेशन आगे आप देते जाइए विमल जी। और तो ये था AMB न्यूज। AMB न्यूज में आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी, और बहुत सारे आपको एग्जीबिशन, वर्कशॉप्स और आने वाले AIPTI के एग्जीबिशंस। तो आपको वहाँ पर प्री रजिस्ट्रेशन कैसा होगा, क्या होगा, आपको इजी एक्सेस कैसे मिले, उसकी इंफॉर्मेशन हम आपको बताएंगे। तो आप जरूर से AMB न्यूज के साथ जुड़े हुए रहिए। और आप हमारा एक ईमेल ID नोट कर लीजिए, info.ambnews@gmail.com, info.ambnews@gmail.com। और व्हाट्सएप नंबर भी हमारा है 9223392434। ये था AMB न्यूज। धन्यवाद, अगले एपिसोड में फिर से मिलेंगे।